Welcome to today's session. In the previous lecture, we discussed function overloading. Actually, we were discussing polymorphism in C++. The polymorphism can be implemented in two ways. One is overloading, and another is overriding. The another name for overloading was compile time polymorphism, and the another name for overriding was runtime polymorphism. And yesterday we discussed what are the various basic concepts regarding these, and we also discussed that the compile time polymorphism, that is when the compiler itself is able to bind the function call to a particular form if that function is being implemented, if it has got multiple implementations with the same name, that can be done by compiler itself. तो फिर उसके बाद हमने देखा कि compile time polymorphism can further classified into function overloading and operator overloading. Now today we will be, कल हमने function overloading देख लिया था क्या, what are the various concepts and what are the various rules, और किन किन functions को हम function overloading में implement नहीं कर सकते, that we discussed yesterday. Today we will be doing some of the examples which will give you a concept regarding how we can implement function overloading in C++. So this is the first example. As you can see, I haven't used any class here, so as to give you the clear identification and clear understanding of the concept of function overloading. These are the include files, namespace. Then what I am doing, I'm actually designing simple function. This is the return type. Name of the function is display. It has got two parameters. One is of the type integer, another is of the type double. अब इसके अंदर कोड क्या है उसको छोड़ देते हैं हम. It is simply displaying integer variable and double variable. Then we have another function with the same name and also same return type. अब हमें return type का ज़्यादा ध्यान देना नहीं है because we yesterday discussed if we have to implement function overloading, then the two functions with the same name should have different number of arguments or type of arguments or both. There is no connection regarding the return type. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली फंक्शन हमने जिसका नाम डिस्प्ले लिख दिया, यहाँ पे भी हमने फंक्शन का नाम डिस्प्ले लिख दिया. Clear? Now this function has got only one argument. Now the difference between this display function and this display function is in the number of arguments. Here number of arguments are 2, here number of arguments is only 1. So the compiler can differentiate between the two definitions. Clear? Similarly, this is another definition of same function with the same name, again display, but it has got again only one argument. अब देखिए इस function और इस function में क्या difference है? यहाँ भी number of argument 1 है, यहाँ भी number of argument 1 है. So there is no, पहला rule fail हो गया. Now we will check if the second rule is implemented. Here the type of argument is double, but here the type of argument is int. So now again the compiler can differentiate between these two functions. अगर हमने यहाँ से int हटा के double लिख दिया होगा, तब ये then it will cause an error. It will say the compiler will get confused whether to bind the function call to this function body or to this function body because there is no difference. Name भी same है, number of arguments भी same है, और type of arguments भी same है. So compiler cannot differentiate. So the function overloading cannot be implemented. That's why I have written here int. So as to differentiate between these two functions for the compiler. Now in the main function when I am calling this, अब आप देख सकते हैं मैंने simply यहाँ पे दो variables create किए हैं. I am declaring and initializing these two variables. One is of the type integer and another is of the type double. Now see how we have implemented polymorphism. हमने लिखा है, एक तो हमने यहाँ function definition से polymorphism किया, उसके बाद आप देख सकते हैं when I am calling this function display a. तो अब compiler क्या करेगा, जब यहाँ पे आ जाएगा compiler ये देखेगा अच्छा this function call should be binded, मतलब लिंक होना चाहिए इसको अपनी फंक्शन बॉडी के साथ. लेकिन ये ऊपर देखेगा भाई यहाँ तो तीन बॉडीज हैं, यहाँ पे भी डिस्प्ले है, यहाँ पे भी डिस्प्ले है, एंड हियर अगेन वी हैव डिस्प्ले. नाउ द कंपाइलर विल चेक हियर द नंबर ऑफ आर्गुमेंट इज 1. ये देखेगा अच्छा इसमें तो दो आर्गुमेंट है, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा. सो इट इज कैंसल्ड. नाउ हियर अगेन वी हैव नंबर ऑफ आर्गुमेंट 1 एंड अगेन नंबर ऑफ आर्गुमेंट इज 1. नाउ देयर इज द चॉइस, इट हैज गॉट ओनली टू चॉइसेस. पहले इसके पास तीन चॉइसेस थी, नाउ इट हैज गॉट ओनली टू चॉइसेस. नाउ इट हैज टू चूज अमंग हाउ ये बाइंड किसके साथ करे, whether to bind it with this function or to bind it with this function. क्लियर? अब ये कैसे करेगा? पहले रूल के हिसाब से इसने रूल आउट किया. among 3 it has ruled out 1. now it is left with 2 choices. now it will bind the display function with, now it will check the type of a. it will check ये जो a है it is of the type integer, और ये देखेगा यहाँ पे जो कैच कर रहा है आर्गुमेंट, पास तो हम इंटीजर कर रहे हैं, यहाँ कैच कर रहा है डबल, तो इसको ये कैंसिल आउट करेगा. नाउ इट इज लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन. सो इट विल बाइंड दिस फंक्शन. आपके लिए मैं इस फंक्शन को कमेंट में लिख लेता हूँ f1, मतलब दिस इज द फॉर्म 1 ऑफ द फंक्शन. सिमिलरली
this is the form 2 of the function, and similarly this is the form 3 of the function. तो इसका मतलब कंपाइलर जब यहाँ इस लाइन पे पहुंच गया तो ये किसके साथ बाइंड किया जाएगा? It will be binded with form 3. So no confusion. उसके बाद compiler will check for this line. यहाँ पे फिर से देखेगा number of argument 1 है तो we have got 2 choices. Now it will check the type of argument. ये जो b है it is of the type double, so it will bind it with this. तो यहाँ पे किसके साथ bind किया जाएगा? Here it will be binded with f2. Now this again, यहाँ पे भी 3 choices है, लेकिन 3 में से देखेगा here we are passing 2 arguments, so it will bind this function call with this function body where it has got 2 arguments. तो यहाँ पे call किया जाएगा, मतलब यहाँ पे bind किया जाएगा, here the function body f1 will get executed. तो आपने देखा अभी execute नहीं हुआ, लेकिन but compiler is able to decide the among various functions with the same name which function body will be attached or binded with a particular function call. So this is compile time polymorphism कि compiler को compilation के time पे ही पता चलता है out of various forms of the function which function is to be binded. तो इसको we can run it also. तो आप देख सकते हैं it has displayed when I have called this display a function. तो क्या होना चाहिए? A should get displayed और किसको call? इसको. तो output should be integer number is equal to 5. So this is your output. तो करेक्ट फंक्शन कॉल की गई. उसके बाद दूसरी फंक्शन को जब मैंने कॉल किया, नाउ इट इज बाइंडेड विद f2. f2 हमारे पास ये है, तो आउटपुट शुड बी डबल नंबर इज इक्वल टू व्हिच इज द नंबर. तो दिस इज योर आउटपुट, डबल नंबर इज इक्वल टू 5.5. सिमिलरली व्हेन वी हैव कॉल्ड दिस फंक्शन, तो ये बाइंड हमने किसके साथ कर लिया? कंपाइलर ने f1 के साथ, और करेक्ट है. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंटीजर नंबर 5, डबल नंबर 5. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन. यहाँ पे f3 f1 form 1 of the function. Clear? So in this way you can change the parameter. Clearly कल किसी ने पूछा था सर if I write this 5 मैं यहाँ पे पास करता हूँ, तो इसको हम फिर से सेव करके we will compile it, we will run it, we will see what happens. आप देख सकते हैं जब मैंने यहाँ पे 5 दे दिया, पहले तो यहाँ a लिखा था, वो तो इंटीजर है, लेकिन अब 5 है. अब 5 can be treated as int as well as double. लेकिन ये क्या करेगा इसको? आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट क्या है? इंटीजर नंबर इज 5. तो किस में है वो? सो दिस फॉर्म f3 इज अगेन बाइंडेड. f3 ही यहाँ पे भी बाइंड हो गया. क्यों? क्योंकि ये इसको ट्रीट पहले करेगा, ये देखेगा यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू तो है नहीं यहाँ पे, तो ये देखेगा इसको इंटीजर के साथ ही ये पहले बाइंड करने की कोशिश करेगा. तो पहले ये चेक करेगा इज देयर एन इंटीजर वन आर्गुमेंट फंक्शन फॉर्म विद वन आर्गुमेंट ऑफ द टाइप इंट. इफ इट इज, सो इट विल बाइंड इट विद दैट बॉडी. तो इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कल किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम वेरिएबल की जगह कोई कांस्टेंट भी देंगे तो उस कांस्टेंट का जो व्हिच इज द नियर टाइप ऑफ दैट कांस्टेंट दैट इज बीइंग चेक्ड एंड द बॉडी इज मैप्ड विद दैट definition. Is it clear? Any confusion or question regarding this? Okay, so this was one example. अब ये तो जो प्रोसीजर ओरिएंटेड हम पहले पढ़ते थे अप्रोच, उसमें था. इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आल्सो वी कैन इंप्लीमेंट फंक्शन. हालांकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ही हम इसको यूजुअली यूज करते हैं बिकॉज इट इज द पॉलीमॉर्फिज्म इज द कांसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम फंक्शन ओवरलोडिंग कर सकते हैं, लेकिन हमने इससे पहले भी एक एग्जांपल की थी वेयर वी हैव ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स. तो यहाँ पे मैंने उसी एग्जांपल को थोड़ा सा फिर से बताने की कोशिश की है ताकि वहां जब हमने पढ़ा था वो आपका और ज्यादा क्लियर हो जाए. जिस तरह हमने यहाँ because when we have read what is a constructor is again a function. तो जिस तरह हम यहाँ पे constructor को overload करेंगे उसी तरह हम function को भी overload कर सकते हैं. So in this example I have simply created a class with the name constructor. It has got only one member variable, that is area. अब इसके बाद मैंने इसके अंदर ये देखिए क्लास का नाम कंस्ट्रक्ट है और यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहा हूँ जिसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, बट इट्स नेम इज अगेन दैट ऑफ द नेम ऑफ द क्लास, जिसकी वजह से क्या होगा? सो इट विल बी ट्रीटेड एज द कंस्ट्रक्टर. अब ये आप देख सकते हैं ये भी कंस्ट्रक्टर है और ये भी कंस्ट्रक्टर है. नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन. कंस्ट्रक्टर की बॉडी तब कॉल की जाती है व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास. अब इन दोनों में से किसको कॉल जाएगी? क्योंकि इसका नाम भी यही है, इसका नाम भी यही है. सो दिस इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है दिस इज कंस्ट्रक्टर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. जिस तरह हमने यहाँ कंस्ट्रक्टर में ओवरलोडिंग की है, इसी तरह हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शंस के लिए भी ओवरलोडिंग कर सकते हैं, जिस तरह मैंने ऊपर एग्जांपल में दिखाया था. हालांकि वो प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच था, बट सेम कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन क्लासेस आल्सो वेयर
मल्टीपल मेंबर फंक्शन, जैसे कि ये एक मेंबर फंक्शन जिसका नाम DISP है, इसी तरह मैं एक और DISP लिख सकता हूँ, लेकिन उसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और द टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स कैन बी डिफरेंट, जिस तरह हमने ऊपर एग्जांपल में इससे पहले किया। इसी तरह लेकिन अब यहाँ पे इसीलिए मैंने दिखाया है कंस्ट्रक्टर में ओवरलोडिंग, बिकॉज इट इज फॉर एग्जांपल इट इज अ बिट न्यू कॉन्सेप्ट। जिस तरह यहाँ पे ओवरलोडिंग की जाएगी, इस तरह फंक्शंस में भी ओवरलोडिंग की जाएगी। लेकिन अब आप देख सकते हैं ये भी कंस्ट्रक्टर है और ये भी कंस्ट्रक्टर है। नाउ कंपाइलर विल गेट कंफ्यूज्ड कि जब भी मैं ऑब्जेक्ट, जब भी ये प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, विच कंस्ट्रक्टर इज टू बी कॉल्ड, is this or this constructor needs to be called. Now the definition or the prototype of these two constructors differ in number of arguments. Here there is no argument, but here we have got two arguments. Clear? तो इसमें क्या कर रहा है ये? Simply it is initializing the area data member to 0, but here it is initializing the area data member with the past values. जो भी इसको हमने पास किए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उससे ये इनिशियलाइज कर रहा है एरिया को. देन वी हैव द सिंपल मेंबर फंक्शन, दैट इज द डिस्प्ले व्हिच डिस्प्लेज द मेंबर वेरिएबल एरिया. इट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ क्लास, सिंपल क्लास. तो उसके बाद अब आप देख सकते हैं मेन के अंदर, अब अंडरस्टैंडिंग के लिए इस कंस्ट्रक्टर का नाम मैं रख देता हूं, इस कंस्ट्रक्टर फॉर्म का C1 और इस कंस्ट्रक्टर का नाम C2. Now here we have got main function. यहाँ पे what I am doing, I am creating the object of construct class. तो जब ये object O create किया जाएगा, ऑटोमेटिकली जो construct class है ये वाला, इसमें देखा जाएगा इसका constructor कौन सा है. Now it has got two constructors, तो compiler will check. भाई यहाँ पे तो ये जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, इट इज नॉट पासिंग एनी आर्गुमेंट, सो इट हैज गॉट टू चॉइसेस. जब ओ क्रिएट किया जाएगा, इसके पास या तो ये इसको एग्जीक्यूट कर सकता है कंस्ट्रक्टर, या इसको बाइंड कर सकता है इस कंस्ट्रक्टर के साथ. इज इट क्लियर? नाउ हियर व्हेन दिस कंस्ट्रक्टर विल गेट कॉल्ड, when this constructor will get when this object will get created, there are two choices of constructor. One is this and another is this. तो अब इन दोनों में से कौन सा एग्जीक्यूट होगा वो ये चेक करेगा, हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स आर और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दैट वी आर पासिंग टू द कंस्ट्रक्टर. अब यहाँ पे कोई भी पास नहीं कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे इट विल बी, कंपाइलर विल बाइंड दिस टू द कंस्ट्रक्टर बॉडी विद नेम C1 फॉर एग्जांपल, जिसको हमने C1 नाम रख दिया, तो C1 के साथ ये मैप किया जाएगा. तो जब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, इट विल बी बाइंडेड विद द डेफिनेशन ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर. उसके बाद दूसरा अब यहाँ पे फिर से मैं ऑब्जेक्ट O2 को क्रिएट कर रहा हूँ, बट आई एम ऑल्सो पासिंग टू आर्ग्यूमेंट्स. अब यहाँ पे फिर से इसके पास दो चॉइसेस है, दिस एंड दिस. लेकिन इन दो चॉइसेस में किसको देखेगा? इट विल चेक द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, इट इज पासिंग टू आर्ग्यूमेंट्स, और दो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा. या जबकि यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स है, तो इट विल बी कंपेयर्ड मैप्ड और बाइंडेड विद C2. इज इट क्लियर? तो जिस तरह यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की है, अब इन कंस्ट्रक्टर्स के बदले वी कैन हैव मेंबर फंक्शन दैट कैन बी ओवरलोडेड. ठीक है. उसके बाद मैंने सीधे O को डिस्प्ले किया है और O2 को डिस्प्ले किया है इन ऑर्डर टू चेक जो ये मैंने बाइंडिंग की है, कंपाइलर ने जो बाइंडिंग की है, क्या ये सच में हो भी रही है कि नहीं. तो इसको अगर हम रन करेंगे, वी विल कंपाइल इट, वी विल रन इट. यू कैन सी when I am displaying O object, तो वहां पे मैं पास तो कुछ कर नहीं रहा हूं, तो area should be initialized to 0, so your output is area 0 because I am displaying the O object. Similarly, when I am displaying the O2 object, उसमें हम 10 और 20 पास कर रहे हैं, and your answer should be 10 into 20 because this C2 is being called, so your constructor area should be 200. तो यहाँ पे 200 आ रहा है, so our understanding is clear. दैट इज बिफोर, हमने अभी एग्जीक्यूट किया नहीं, वो तो हमने अब कर लिया. एग्जीक्यूट करने से पहले ही वी आर एबल टू डिसाइड कि इन यहाँ पे जो दो कॉल्स है टू द कंस्ट्रक्टर, बट वी हैव गॉट टू चॉइसेस ऑफ द कंस्ट्रक्टर विद द सेम नेम. तो जब ऐसा है तो उनमें से कौन सा इसके साथ बाइंड किया जाएगा? इट इज फंक्शन ओवरलोड, सॉरी इट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोड. Similarly, you can implement, आप अपनी जगह अपनी machines पे you can implement the simple function overloading where these member functions with the same name but different number of arguments or different type of arguments or both can be there, and you can implement function overloading. Now it depends upon your problem. अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब मैंने constructor वाली example ही क्यों दिखाई, because this is the common scenario in object oriented programming where we have got multiple constructors. जब भी आप कोई भी क्लास लिखेंगे, एटलीस्ट उसमें दो कंस्ट्रक्टर तो होंगे ही. दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड अनदर इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स, और उसके अलावा यू हैव कॉपी कंस्ट्रक्टर आल्सो. तो एटलीस्ट दो कंस्ट्रक्टर तो होते ही है. इसीलिए आई हैव अगेन समराइज्ड दिस एग्जांपल, ताकि किसी को ये कंफ्यूजन ना रहे कि भाई इसमें दो कंस्ट्रक्टर की बॉडी है तो दोनों में से कौन सा एग्जीक्यूट होगा, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एग्जांपल?
Is it clear? Is the concept of function overloading clear? Yes, sir. हाँ, और करते क्यों है? What is the main reason of using function overloading or constructor overloading? The main reason is to make the code easy to access and easy to read. आप देख सकते हैं आप इस पहली एग्जांपल से हम समझ सकते हैं. Give me 1 minute. From this example, we can understand the basic reason of using function overloading. Reason क्या है? For example, भाई आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसके अंदर there can be lakhs of lines of code. अब इतनी सारी lines of code जब होंगी आपके पास, तो उसमें से आपने कहीं पे एक कोड लिखा होगा which displays something. लेकिन अब एक ही डिस्प्ले फंक्शन तो होगी नहीं, बिकॉज यू मे हैव मल्टीपल वेरिएबल्स और हर किसी वेरिएबल को या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को डिस्प्ले करने का तरीका डिफरेंट होगा, लेकिन हर किसी जगह हम डिस्प्ले ही कर रहे हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर देयर आर 15 फंक्शंस विच डिस्प्ले, तो मैं अगर उनको ऐसे रखूंगा नाम डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3, डिस्प्ले 4, डिस्प्ले 5, देन आई हैव टू रिमेंबर कि जब मुझे इंटीजर को डिस्प्ले करना है तब उसके लिए मुझे किस फंक्शन को कॉल करना है. डिस्प्ले 1 को करना है, 2 को करना है, 3 को लिखना है, 4 को लिखना है. हमें क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बहुत बड़ा सा एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे लैक्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड है, लेकिन उसमें से आपके पास यू वांट टू डिस्प्ले समथिंग और अलग अलग वेरिएबल को डिस्प्ले करने का तरीका डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल, अगर आप दो इंटीजर डबल को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो मैसेज आनी चाहिए इंटीजर नंबर ये, डबल नंबर ये. अगर सिर्फ डबल तो सिर्फ डबल नंबर आना चाहिए, अगर सिर्फ इंटीजर तो सिर्फ इंटीजर. तो हियर वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ 3 डेफिनेशंस. तो आप क्या लिख सकते थे? आपको लिखना था डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2 एंड डिस्प्ले 3, सॉरी, एंड डिस्प्ले 3. तो उसके बाद अब यहाँ पे आपको याद रखना था भाई, जब इंटीजर है, इंटीजर के लिए वी यूज डिस्प्ले 3. उसके बाद जब डबल को डिस्प्ले करना है वी हैव टू राइट डिस्प्ले 2. व्हेन जब दो आर्गुमेंट्स को डिस्प्ले करना है वी हैव टू राइट डिस्प्ले 1. अब यहाँ पे कोड तो छोटा था, आपने देख के लिख लिया, लेकिन व्हेन यू हैव लैक्स ऑफ और थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड, देयर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर कि मुझे अगर डिस्प्ले करना है या एक कॉमन कोई काम करना है जिसके लिए मल्टीपल फंक्शंस हो सकती है, तो एक पर्टिकुलर काम करने के लिए किस फंक्शन को कॉल करना चाहिए. तो लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो इस कॉन्सेप्ट को ही हटा देता है. वो बोलता है आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है. अगर आपको लग रहा है कि दी ये जो डिस्प्ले है ये भी डिस्प्ले कर रहा है, ये भी, आप सबका नाम डिस्प्ले ही रख दो. देन differ their definition depending upon the number of arguments you pass or the type of arguments you pass. तो उसकी वजह से क्या होगा, अब मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ लिखना है डिस्प्ले. भाई डिस्प्ले करना है मुझे किसको, 5, तो ये खुद चेक करेगा कंपाइलर, भाई इसको डिस्प्ले करना है. अब डिस्प्ले के लिए आई हैव गॉट 3 ऑप्शंस, 3 में से कौन सा देखेगा, ये बाइंड हमेशा F3 के साथ ही करेगा. सिमिलरली इसके साथ भी, सिमिलरली इसके साथ भी. तो इसका मतलब जो इससे पहले एक हेक्टिक प्रोसेस था प्रोग्रामर के लिए, वेयर द प्रोग्रामर हैज टू रिमेंबर कि अलग अलग डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए अमंग द वेरियस डेफिनेशंस which have got the same role, which have got the same execution pattern or which do the similar job, which function name should I write. तो ये प्रॉब्लम इसने हटा दी, इसने सिंपल बना दिया कोडिंग को, और इजीली हम इसको पढ़ भी सकते हैं. अगर इससे पहले मैंने यहाँ लिखा होता डिस्प्ले 1, फिर डिस्प्ले 2 और यहाँ पे डिस्प्ले 3, तो जो दूसरा प्रोग्रामर इसको पढ़ता वो बोलता अरे यार ये डिस्प्ले 1 का मतलब क्या है, 1 कुछ डिफरेंट होगा. लेकिन अब अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले लिख दिया तो दूसरे प्रोग्रामर को भी समझ आ जाएगा, ओके इट इज डिस्प्लेइंग 5, इट इज डिस्प्लेइंग द वेरिएबल बी, इट इज डिस्प्लेइंग वेरिएबल ए एंड बी. तो पढ़ना ईजी हो जाता है. सो इट इज ईजी टू रीड एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ राइटिंग द कोड गेट्स डिक्रीज व्हेन यू यूज फंक्शन ओवरलोडिंग. तो ये एग्जाम में भी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग एंड व्हाई डू वी यूज इट. तो व्हाई डू वी यूज इट का आंसर यही है, इसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी जो है कोड लिखने की, कोड एग्जीक्यूट करने की नहीं, वो तो सेम रह जाती है, लेकिन कोड को लिखने की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है. एंड अनदर थिंग इज इट इज इजी टू रीड द कोड.